Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नीट का एग्जाम बेसिकली शिफ्ट हो चुका है. नाउ इट विल बी कंडक्टेड ऑन द 26th of the July month. Okay, so accordingly now you have sufficient time. Like you can call it, you have extra time to prepare your content, or you can even like in this time you should revise your content instead to prepare a new content. Okay, तो इस समय में आपको अपना कंटेंट रिवाइज करना चाहिए. नए कंटेंट पे के पीछे भागने से अच्छा है कि आप पुराना कंटेंट है उसको रिवाइज करो. Okay, so accordingly, like as we are on the mineral nutrition, so in the previous lecture we have studied about the different macronutrients and the micronutrients. Okay, what is the role of the macronutrients and what is the role of the micronutrient. Now again, okay, so now today lecture is based on the deficiency symptoms of the essential elements. Like what would be happen if the elements are not in an optimum quantity, so what kind of deficiency or what kind of symptoms you may observe morphologically and anatomically. The basically most of the symptoms you can observe morphologically, but sometimes and your observation or your symptoms it may be anatomically. Okay, now, so in a previous lecture, we have studied the different kinds of macronutrients like nitrogen, potassium, phosphorus, sulfur, magnesium, that we have studied lots of. In the micronutrients, we have studied about the next difference, like the manganese, okay, molybdenum, okay, and calcium, that we have studied. Now we are just continuing the micronutrients. Okay, so first of all, the copper. The copper is basically absorbed as the cupric ion. Okay, it's basically the cupric ion. It's absorbed as a cupric ion, and it is essentially for the overall metabolism in a plant. Okay, तो basically ये plants में overall metabolism के लिए require होता है. Okay, yes, overall metabolism के लिए basically require होता है. Just a minute. Okay, so and like iron, it is associated with a certain enzyme involved in the redox reaction, plastocyanin and plastokinin, and it reversibly oxidized from Cu plus to Cu plus to Cu plus 2. Basically, what happens is exactly in this redox reaction, basically the copper ion, like जैसे कि ferrous था, ferrous basically associate था आपकी जो आपकी साइटोक्रोम जो प्रेजेंट है, ओके, जो ईटीए सिस्टम के अंदर उनमें फेरस प्रेजेंट रहता है जो मेटलोप्रोटीन्स होती है. हियर द कॉपर फर्दर मेक एक मेटलोप्रोटीन, एक मेटल प्रोटीन्स बनाता है. ओके, मेटलोप्रोटीन बनाता है लाइक एंड द प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन, दिस आर योर मेटलोप्रोटीन जिसके अंदर कॉपर आयन एसोसिएट होता है, एंड इट रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu plus to Cu plus 2. what I exactly mean to say, कि आपका जो ये ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन, दोनों साथ-साथ चलते हैं. हमने रिवर्सिबली ऑक्सीडेशन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है. इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ-साथ चलता रहता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिवर्सिबली ऑक्सीडेशन. Cu+2 ion is which receive the electron and provide to terminal electron to acceptor oxygen. ओके, Cu+2 एक ऐसा आयन होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो ईटीएस सिस्टम के अंदर जो सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद में अपने इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है. तो दैट्स व्हाई रिसीव द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ओके, now the boron is basically absorbed in the form of borate or the tetraborate form. Okay, it is required for uptake and utilization of the calcium plus 2. देखिए, अगर बोरॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो कैल्शियम आयन का ना अपटेक हो सकेगा ना यूटिलाइजेशन हो सकेगा. और वी नो लाइक द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है. ओके, इसके अलावा सेल डिवीजन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है. कैल्शियम आयन इवन इट वर्क एज द एंजाइम एक्टिवेटर काम करता है. और स्पिंडल फाइबर जो डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है. सो अगर बोरॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो कैल्शियम आयन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा. इसके अलावा अदर सेल के जो फंक्शंस हैं, लाइक सेल का डिफरेंशिएशन, सेल का इलोंगेशन, पॉलन जर्मिनेशन, ओके, मेम्ब्रेन फंक्शन, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे. मेम्ब्रेन फंक्शन क्यों डिस्टर्ब होगा? क्योंकि कैल्शियम का अपटेक नहीं हो पा रहा. पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, बिकॉज क्या होता है, सेल का इलोंगेशन मतलब सेल इलोंगेट होती है. ठीक है, जैसे काफी सेल्स होती है जो इलोंगेट होती है, जो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाती है. सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल का डिफरेंशिएट हो जाना, कि एक मेरिस्टेम टिश्यू की तरह काम करती है, एक
एक परमानेंट टिश्यू की तरह वहाँ उसकी सेल्स काम करती है, तो एक सेल का फंक्शन होता है अपना अलग-अलग हो जाता है कि जाइलम एक अलग सेल है, फ्लोएम एक अलग सेल है, ठीक है? तो उसी तरह स्टोमेटा एक अलग सेल है, तो बेसिकली यहाँ सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसके अलावा बोरोन का जो फंक्शन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करती है फ्लोएम के सीवी ट्यूब के अंदर। ये जो टॉपिक है बेटा, ये हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, जब आपको 8 पॉइंट्स और क्लियर हो जाएँगे, ओके? इसके अलावा मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम बेसिकली ये प्लांट में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है मॉलिब्डेनेट आयन के फॉर्म में। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। ये दो एंजाइम्स का ये इन दोनों एंजाइम्स के फंक्शन के लिए मॉलिब्डेनम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अपना रोल ये प्ले करता है। इंक्लूड नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेड एंजाइम, ओके? क्लोरीन, ये बेसिक हमेशा जो प्लांट्स होते हैं क्लोराइड आयन के फॉर्म में क्लोरीन को एब्जॉर्ब करते हैं अलॉन्ग विद द सोडियम और पोटेशियम। ये सेल के अंदर सेल सैप में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, ओके? और उस एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन रखता है। बेसिकली क्या होता है कि सेल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है? ये आयंस की कंसंट्रेशन होती है, जो कि अगर आपको सॉलिड की कंसंट डिटरमाइन करनी है या फिर एनायन कैटायन बैलेंस रखना है सेल के अंदर, तो इन आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, they are majorly required for maintaining the solute concentration in sap solution as well as the anion cation balance। ये anion cation balance हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, जब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये anion cation बैलेंस क्या है और ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ओके? It is essential for the water splitting reaction in a photosynthesis, a reaction that lead to oxygen evolution। हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस में जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सिस्टम से पास होते हैं एंड दैट गिव यू द एटीपी, ओके? एंड NADH2। Now, the mineral required for the splitting of water molecule during the photosynthesis is the Mn+2 or chloride minus ion, okay? Mineral required for maintaining the cell sap concentration और osmotic pressure। देखिए, अगर सेल सैप बेसिकली क्या होता है, ये वैक्यूल्स के अंदर भरा हुआ लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सेल सैप की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगी तो कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगी तो एक्सोऑस्मोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल पूरा वाटर सेल से बाहर आ जाता है। दैट्स व्हाई सेल सैप की कंसंट्रेशन या फिर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। एंड सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड आयन, Ca प्लस आयन, पोटेशियम आयन, दे आर द मैंडेटरी आयंस जो कि सेल सैप के अंदर पाए जाते हैं। सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन करना है, सेल की परमेबिलिटी के लिए इसके लिए कैल्शियम प्लस आयन, Cl माइनस और K प्लस आयन, ये बेसिकली सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। मिनरल वर्क एज अ कोएंजाइम एक्टिवेटर, ठीक है? तो ये एक समरी एक तरह की, मैग्नीशियम प्लस आयन, Fe+2 आयन, कैल्शियम +2 आयन, Zn+2 आयन, सल्फेट प्लस आयन एंड द Mn+2 आयन। तो ये बेसिकली वो एंजाइम्स हैं जो बेसिकली एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जिंक प्लस आयन, ये मोर देन 40 एंजाइम्स का एक्टिवेटर होते हैं। Mg+2 आपको पता है कि ये Mg+2 इवन लाइक आपके फोटोसिंथेसिस जो रेस्पिरेशन में जो आपका लाइक जो फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है, ठीक है? ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है? तो उसके अंदर लाइक मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे एक्टिवेटर होते हैं जिसमें राइबोलोज जो रूबिस्को है, पैक्को एंजाइम है, ओके? उसमें Mg+ की रिक्वायरमेंट होती है। सेम Fe+ आयन, Fe+ आयन बेसिकली वो आयन है जो बेसिकली आप ये आपने स्टडी किया, Fe+ आयन बेसिकली ईटीएस सिस्टम के अंदर एक वर्क करता है जो कि मेटलोप्रोटीन बनाता है, ठीक है? कैल्शियम आयन प्लस सेम, ओके? इवन जिंक प्लस आयन, सल्फेट आयन, Mn+2 आयन, समटाइम Mn+2 आयन Mg+2 आयन के साथ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर शो करता है, ओके? रिट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी, कई बार क्या होता है जब आयंस की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ आयंस मैच्योर ऑर्गन से न्यूली लाइक सिंथेसाइज ऑर्गन की तरफ ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि कुछ मोबाइल आयन होते हैं कि जिनमें ट्रांसलोकेशन की कैपेसिटी होती है, और कुछ ऐसे नॉन मोबाइल होते हैं कि जो कि ट्रांसलोकेट नहीं हो सकते, ओके? तो कि हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली लिस्ट है मोबाइल आयंस की और नॉन मोबाइल आयंस की। एक साइड आपके सारे मोबाइल आयन है, दूसरी साइड आपके नॉन मोबाइल आयन है। ये बेसिकली वो मोबाइल आयंस है जो बेसिकली डेफिशिएंसी के समय पे ओल्ड टिश्यू से न्यू टिश्यू की तरफ, यंग टिश्यू की तरफ ये ट्रांसफर हो सकते हैं। व्हाइल ये नॉन मोबाइल सिस्टम में ये ट्रांसफर नहीं हो पाते। सो इन केस अगर जैसे नाइट्रोजन की कमी हो रही है, ठीक है, न्यू लीव्स के अंदर, तो वो नाइट्रोजन ओल्ड लीव से का जो, जैसे कि नाइट्रोजन कहाँ होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर होता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी पोरफायरिन ब्रेक डाउन होती है और वहां से वो नाइट्रोजन निकल के
नाइट्रोजन निकल के यंग लीफ की तरफ ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम ट्रांसफर नहीं होता। बेसिकली आयंस कभी फ्री फॉर्म में नहीं होते कि जनरली चले गए। इनका क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। तो जब तक बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल नहीं ब्रेक डाउन होगा, वो आयंस रिलीज नहीं होते हैं। डेफिशिएंसी सिम्पटम क्या है? डेफिशिएंट सिम्पटम का मतलब है कि जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई करते हैं, बट कभी-कभी क्या होता है कि जब किसी आयन की कॉन्संट्रेशन जब किसी कॉन्संट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि जिसके बाद में प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी आयन्स की कॉन्संट्रेशन की एक लिमिटेड होती है, जिसे हम ऑप्टिमम क्वांटिटी कहते हैं। बट ऑप्टिमम क्वांटिटी इट मीन्स उस क्वांटिटी के ऊपर प्लांट अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है। बट एक ऐसी क्वांटिटी कि अगर उससे कम हो गई तो प्लांट अपनी ग्रोथ ही शो नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ओके, द एलिमेंट इज said to be deficient when present below to the critical concentration. ओके, जब बेसिकली कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम आप मेजर करते हैं जब उस आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए। ओके, since each element has one or more specific structural and functional role in a plant, हर एक एलिमेंट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल है। जैसे कि अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर कैल्शियम है जिसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, इवन बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के रिस्पॉन्सिबल। क्लोरोफिल इसका नाइट्रोजन की एक रिंग बनाता है, जैसे क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शनल की बात करें तो Mg+ आयन है, ये एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। So in the absence of any particular system element, the plant shows certain morphological change. अगर उसमें से कोई भी एक आयन कम हो गया तो morphological change दिखाई देते हैं और इस morphological changes की वजह से ये होते हैं बेसिकली deficiency symptom। हम ये बताते हैं कि ये अगर कोई morphologically अगर आपको चेंज दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी है, डेफिशिएंसी है। ओके, सो डेफिशिएंसी का जो सिस्टम होता है एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है। ठीक है, सो बेसिकली एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है। क्लोरीन की अगर एफिशिएंसी क्लोरीन की वजह से कोई दूसरी क्लोरीन की वजह से कोई दूसरी डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की दूसरी डेफिशिएंसी होगी। सो इट वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ओके, दे डिसअपीयर व्हेन द मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। एग्जैक्टली से क्लोरीन की कमी है तो अगर आप क्लोरीन को दे देंगे तो वो उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाती है। ओके, तो ये परमानेंट नहीं होती। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली वो उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, ठीक है, अगर प्लांट्स को मिल ही नहीं पा रहा है तो वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, अगर वो डेप्रिवेशन अगर कंटिन्यू होता है तो फिर वो प्लांट की डेथ तक लीड कर जाता है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्पटम आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन अ प्लांट। द प्लांट जो डेफिशिएंसी सिम्पटम होता है वो डिपेंड करता है एलिमेंट की मोबिलिटी के ऊपर। जैसे कि कैल्शियम आयन मोबाइल कर जाता है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम आयन मोबाइल नॉन मोबाइल है लेकिन नाइट्रोजन मोबाइल है। ठीक है, पोटेशियम है, फेरस है, लेकिन अदर आयंस नहीं है। ओके, for element that actively mobilized within a plant are exported to the young developing tissues। जैसे कि फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन अ प्लांट दैट जो ऐसे आयंस होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मूवेबल होते हैं, वो हम यंग डेवलपिंग टिश्यूज को एक्सपोर्ट कर देते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्पटम टेंड टू बी फर्स्ट अपीयर इन द ओल्डर टिश्यू। मान के चलिए कि नाइट्रोजन की कमी थी तो नाइट्रोजन क्या हुआ, यंगर ओल्डर टिश्यू से यंगर टिश्यू के अंदर आ गया। तो अब वो कहाँ दिखाई देगा आपको, ओल्डर टिश्यू के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यू, फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर टिश्यू। देखिए यहाँ लाइन बहुत डिफरेंट है, फर्स्ट और ओनली। फर्स्ट का मतलब है कि यहाँ के आपको फर्स्ट पहले आपको ओल्डर टिश्यू में दिखाई देगा, लेकिन अगर वही कॉन्सेंट्रेशन न्यू में भी कम रहेगी तो फिर आपको न्यू में दिखाई देगा। ओनली नहीं लिख सकते आप यहाँ पे वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे पहले आपको वो सेंसिटिव लीव्स, मतलब नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको वो ओल्ड लीव्स के सॉरी अगर हो जाती है तो आपको ये जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देखिए ये सारे आयंस जितने भी है बेटा ये ट्रांसलोकेट हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलोकेट होके यंगर टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। तो जितनी पुरानी लीव्स के अंदर आपको इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दिस एलिमेंट, एग्जैक्टली वो नाइट्रोजन कैसे शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसका जो बायोमोलिक्यूल होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइक क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाता है और नाइट्रोजन फ्री होकर यंगर लीफ की तरफ मूव करता है। Okay, the deficiency symptom tend to appear first in a younger tissue whenever the element are relatively immobile and not transported out of the mature organ। देखिए जो डेफिशिएंसी सिम्टम होता है सबसे पहले अगर इमोबाइल के कंडीशन में आपको सबसे पहले यंग में दिखाई देगा। सबसे पहले यंग का कहने का मतलब है कि अगर कमी हुई तो ये ओल्ड में भी दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले आपको यंगर टिश्यू में ऑब्जर्व होगा।
व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल और जब आपको मैच्योर ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। एग्जांपल के लिए कैल्शियम एंड द सल्फर ये इमोबाइल है, दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट्स और वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते, ठीक है, वहां से वो बाहर नहीं निकल पाते, तो ये इमोबाइल हो जाते हैं और इनकी कमी सबसे पहले आपको यंगर टिश्यू के अंदर दिखाई देती है। The aspect of the mineral nutrition of plant is of a great significance and important to the agriculture and the horticulture। जो मिनरल न्यूट्रिशन का जो सिग्निफिकेंस होता है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आप इन सब आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ उनके डेफिशिएंट सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। दैट डेफिशिएंट सिम्टम किसी की वजह से भी हो सकता है, मोबाइल इमोबाइल की वजह से, सॉइल के अंदर ना हो तो भी पॉसिबिलिटी, तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। The kinds of the deficient symptoms shown in the plant include the chlorosis है, necrosis है, stunt plant growth है, premature fall of leaf है, birds है, inhibition of cell division है। देखिए जैसे कि अगर आप देखेंगे कुछ मॉर्फोलॉजिकल आपको चेंजेस आपको दिखाई दे जाएंगे सिम्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बर्ड, ये आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ये सेल के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इसके सिम्टम्स आपको किसी दूसरे फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, तो क्या होता है प्लांट्स येलो पड़ जाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, सॉरी पोटेशियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक, एमो, ये सब रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम्स। अगर आप मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जैसे कि नाइट्रोजन दैट्स अ मैंडेटरी पार्ट, ठीक है, एंड लाइक द फेरस दैट्स क्योंकि फेरस के प्रेजेंट में क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर आप देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज सॉरी मैग्नीशियम आयन, ओके, जो मैग्नीशियम बेसिकली क्लोरोफिल के बीच के अंदर होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट आयन। सो कुछ इंपॉर्टेंट आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि आपकी नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, फेरस है, दिस आर द इंपॉर्टेंट आयन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आयन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके अलावा जैसे कि जिंक है, मोलिब्डेनम है, ये अदर आयन्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। Necrosis अगर देखें that is the death of the tissue, which is particularly leaf tissue and it occur with the deficiency of the calcium, magnesium, copper and the potassium। Necrosis कब होता है जब कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा हो। सो अगर आप देखेंगे कैल्शियम है वो उस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, मतलब माइटोटिक स्पिंडल फाइबर नहीं हो पा रहे, दैट्स व्हाई कैल्शियम की कमी है। मैग्नीशियम बिकॉज ये मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसिस में मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉपर है, पोटेशियम है, बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, दैट्स व्हाई इनकी एब्सेंस में नेक्रोसिस जैसे इशू होते हैं, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कई बार क्या होता है कि सेल डिवीजन का इनहिबिशन हो जाता है, मतलब सेल डिवाइड नहीं हो पाती है, तो उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि पोटेशियम है, ओके, नाइट्रोजन है, सल्फर है और मोलिब्डेनम ये प्रेजेंट नहीं होते जिसकी वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, तो इनकी एब्सेंस की यानी कमी की वजह से सेल डिवीजन आपका इनहिबिट हो जाता है, क्लियर। क्योंकि सेल डिवीजन के इनहिबिट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लाइक अभी आपका डीएनए का एप्लीकेशन नहीं हो पाया प्रॉपर वे से, जो प्रोटीन है उसका फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि जब डीएनए का जो फॉस्फोरिलेशन उस डीएनए का नहीं हो पाया, इट्स हैपन, ओके, तो या फिर उसका कह सकते हो कि या फिर बीच या फिर कोई ऐसा कोई सिम्टम्स आए थे जिसके साथ डिले हो गई, ओके। एंड इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं लाइक सल्फर है, नाइट्रोजन है, मोलिब्डेनम है, जिसकी वजह से फ्लावर की डिले हो जाता है, फ्लावरिंग में डिले हो जाता है इफ देयर कंसंट्रेशन इज प्लांट इज लो। सो अगर आप देखेंगे डिले इन फ्लावरिंग, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ओनली देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ द पोटेशियम, ठीक है। स्टंट प्लांट ग्रोथ का मतलब होता है मैरीमेस्टिक टिश्यूज की डेथ हो जाना, और एक प्लांट के अंदर एक यही एक मैरीमेस्टिक टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज अ मल्टीपल सिम्पटम। एक एलिमेंट की कमी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन अगर सिर्फ कम है, नाइट्रोजन दैट्स अ मैक्रोमोलेक्यूल है, अगर वो कम है तो आपको क्लोरोसिस हो सकता है, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, क्लियर। इसके अलावा फ्लावर की लाइक डिले फ्लावरिंग हो जाती है। सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन और सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब सेम सिम्टम अगर आप देखेंगे सेम सिम्टम जैसे कि डिले इन फ्लावरिंग, इट मे कॉज्ड बाय द सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स, देखिए इसके लिए कितने सारे एलिमेंट्स रिस्पांसिबल हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये सब लाइंस क्या होता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस है और कभी घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए नेक्रोसिस, ये दिख रहा है आपको, ये नेक्रोसिस है, ये आपके येलोइस पड़ जाते हैं। इसके अलावा ये
सॉरी, ये नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस क्या है? ये नेक्रोटिक स्पॉट होते हैं, मतलब यहाँ ब्राउन कुछ ब्राउन कलर के कुछ यहाँ फॉर्मेशन हो जाते हैं अराउंड द वेन, तो इसकी वजह से नेक्रोटिक मतलब प्लांट टिश्यू वहाँ की जो प्रोटीन है उसकी डेथ हो जाती है, तो नेक्रोटिक स्पॉट बनते हैं। इसके अलावा ये कुछ येलोइश स्पॉट इसकी तरफ बन रहे हैं जो कि हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होना। ओके, सो हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े, इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको फ्लो करता रहूँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ओके, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मिनरल्स में आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि मॉलिब्डेनम का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? जैसे कि अगर सेल डिवीज़न इनहिबिट हो रहा है तो मॉलिब्डेनम के की वजह से, की कमी की वजह से होता है। तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है कि रियल में मॉलिब्डेनम की वजह से कैसा होता है, तो इट विल टेक अ टाइम, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा और फिर आपका रियल कंटेंट से आप दूर हो जाओगे। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर जस्ट आप थोड़ा-सा स्टडी उसी पॉइंट पे फोकस कीजिए जो आपको समझने लायक है। ओके, सो जब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।